Hello, class 11. Hope you all are fine after this vacation, and we are going to start our third chapter, Theory of Demand. Okay, demand is a desire backed with ability to pay and willingness to pay. If one is willing to purchase, he have money to spend on that commodity, and he is willing to pay that money also. Uh, that means he is creating a kind of demand. So word demand must have all three components, like desire to purchase any commodity, ability to pay for that commodity, and willingness to pay for that commodity. So basically, word demand stand for the quantity of a commodity which a consumer is willing to buy at a given price and in a given period of time. Students, in this chapter we are going to study law of demand, movement along the same demand curve, extension and contraction of demand, change in quantity demanded. Now, starting with law of demand, other thing remains the same. When the price of the commodity falls, demand for it expands, and when the price rises, demand. So demand has inverse relationship with price. When price rises, demand falls. When price falls, demand rises. And what is the meaning this other thing being equal, which means all other factors remain same. That also means there is no change in any other factor which may affect demand. So assumption of this law is the consumer is rational in nature. He always tries to maximize his benefit. There is no change in the price of related good. Taste and preference of the consumer remain same, and the population must remain constant. Okay, other thing is demand schedule. So when we represent the relationship of demand with its price with the help of a table or a tabular presentation, it is called demand schedule. It is a tabular presentation that shows the relationship between quantity demanded and price. So we can see when price falls from rupees 50 to 40, then 30 and 20, the quantity demanded for that commodity is actually rising 1, 2, 3 and 4 unit simultaneously. Okay, when we draw a demand curve, it is a negative slope curve. And what is this negative slope? Negative slope is always a downward sloping curve from left to right. It indicates a inverse relationship between two axes. The vertical axis indicate price of the commodity and the horizontal axis indicate the quantity of the commodity. So when there is a high price of any commodity in the market, the commodity will be purchased less, and vice versa, when price falls, the commodity will be demanded more. So at price A, the quantity demanded was QA, and when price A falls to price B, PB, quantity demanded rises. And these are exceptions of law of demand, which means these are some unique situations in which law of demand does not operates. Like in case of given goods, Vapnal goods, future price changes, demonstration effects, essential goods, change in fashion and taste and preference, habits and addictions, sometimes due to climate also law of demand does not operates. Okay, in detail, given goods, they are inferior goods. Definitely all the given goods are inferior goods. The demand for given goods contract when their price falls, and it is because people substitute them with the superior goods. See, this effect was very first time identified by Sir Robert Giffen. So that is why it is also called Giffen paradox. These are special inferior goods. Okay, students, first of all understand what are inferior goods.
Inferior goods are those goods which have negative income effect. What is negative income effect? When income increases, these goods will be demanded less, and when income falls, these goods will be demanded more. आप ज़्यादा कमाएंगे तो इन चीज़ों का कंजम्पशन कम कर देंगे, और अगर आप कम कमाएंगे तो इन चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ा देंगे. ठीक है. ओके, तो these are special type of inferior goods which will be ultimately demanded more when price of these goods rises. So in that sense they violate the law of demand. Number 2, demonstration effect. It means copying the act of the other. Sometimes we start demanding more of any commodity irrespective of price of that commodity. It is called demonstration effect. Habit and addiction. Some goods have an ability to create a kind of habit or addiction in consumer, like liquor, alcohol, and tobacco consumers. If person is addicted to a commodity, he will not reduce the consumption of it even if the price rises. For example, a smoker may not reduce the consumption of cigarette even if the cigarette price is rising. Next is essential goods. See, some goods are very essential for our survival. We cannot decrease the level of consumption for these goods. Increase or decrease in price of essential goods like medicine do not affect their demand. अगर महंगे भी होंगे तब भी परचेज कर रहे हैं, और इवन सस्ते भी होंगे तब भी हमें परचेज. Okay, next is Vebnal effect or prestigious goods, or sometimes we can say goods of ostentation. Some people buy more of that commodity even when their prices are rising just to maintain social status and prestige. So these goods may have a degree of social status in society. लोग दिखावे के लिए भी कुछ चीज़ें खरीदते हैं. For example, diamond can be purchased more even if the price of diamond is rising, as diamond may be a status symbol and people will try to purchase more diamond even if prices are rising. Next is climate. The demand for woolen clothes increase in winter even if there is no change in price. So as and when goods will be demanded due to change in favorable change in climate, will start demanding more of these goods irrespective of price. Reason behind the law of demand. The primary reason behind the law of demand is diminishing marginal utility. Okay, law of DMU operates. Only a downward sloping curve can show the inverse relationship between price and quantity demanded. See, ये डिमांड कर आप देखते हो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोप होता है इसका मतलब क्योंकि ये दोनों एक्सेस के साथ में इन्वर्स रिलेशन रखता है, विच मीन्स प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन हमेशा इन्वर्स रहेगा. व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी विल फॉल एंड वाइस वर्सा. A rational consumer will reduce the quantity demanded when the price rises in order to equalize the price with the marginal utility, and fall in price leads to increase in real income. Consumer can buy more with the given money income. Okay, individual demand. अगर एक कंज्यूमर परचेज करता है तो इंडिविजुअल डिमांड, और बहुत सारे कंज्यूमर्स एक साथ परचेज करते हैं तो दैट कलेक्टिव डिमांड विल बी. It refers to the quantity of a commodity which an individual consumer is willing to buy at a given price and in a given period of time. So we have a schedule in which we can show individual demand. Prices are rising from falling from 50, 40, 30 to 10, and simultaneously demand is rising 1, 2, 3, 4 and 5. When we draw a demand curve for that, this is as usual the same demand curve we have studied earlier, so there is no change in explanation, it is still same. Now come to market demand. Market demand is nothing else but the horizontal summation of all the individual demand. अब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं सबकी टोटल डिमांड अगर आप काउंट कर लें तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगी.
जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया 3 कंज्यूमर्स हैं, डिमांड हो गई उनकी 2 + 1 + 4 दैट इज़ 7 kg. So the entire volume, a set of demand of all the consumers in a market is called collectively called market demand. So when we draw a schedule for market demand, it will be a horizontal summation for all the individual demand. It is the sum total of quantity of a commodity demanded by all the consumers in a market at a given price and in a given period of time. Students, here we can see we have 4 or 5 columns in which quantity demand of A, B and C is given. So the market demand is the addition of A, B and C. See, at price rupees 10, when A demanded 5 units, B demanded 4 units and C demanded 3 units. Then the market demand will be 5 + 4 + 3 that is 12. Same, when price falls to rupees 8, the market demand will be 8 + 6 + 5 that is equal to 19, and so on. Now when we draw a market demand curve, it is also a horizontal summation of all the individual demand curve, but one thing is very unique in that when we draw all the curve, we can see market demand curve is relatively flatter than the given individual demand curve. जो market demand curve होगा वो थोड़ा सा flatter होगा, थोड़ा सा वो gentle होगा, इतना steep curve नहीं होगा कि ऊपर से नीचे वो जल्दी आए. ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस है इन दोनों में. Market demand curve is flatter than individual demand curve because market demand is the horizontal summation of individual demand curve. Now prepare a difference between change in demand and change in quantity demanded. See, change in demand जो concept है वो है factors other than price that may influence the demand, और change in quantity demanded जो concept है that is exclusively affected by price of the commodity. So head to head difference एक बार समझ लीजिए. Rise or fall in demand due to factors other than price को छोड़ के बाकी सभी factors से in case demand influence होती है, demand change होती है, तो this change in demand is called change in demand. I mean जो demand में changes आएंगे उसको आप सिर्फ change in demand बोल सकते हैं. और when there is a change in demand due to change in price of its own, अपने ही प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंजेस आते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली चेंज इन डिमांड, इट इज़ कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. सेकेंड इज राइज इन डिमांड. राइज इन डिमांड कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड एंड फॉल इन डिमांड इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड. जब आप चेंज इन डिमांड में आइडेंटिफाई करेंगे तो राइज और फॉल को आप इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं, विच मीन्स आइदर इट विल शिफ्ट टू राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. ठीक है, और in change in quantity demanded, rise in demand is called extension or expansion in demand, and fall in demand is called contraction in demand. ठीक है, तो when a point on demand curve, same demand curve, either move upward or downward, when it moves upward it is called contraction in demand, and when it moves downward it is called expansion in demand. The demand curve will shift to right in case of increase और left in case of decrease जब हम change demand की बात करते हैं. और जो quantity demanded वाला केस है इसमें demand curve कहीं shift नहीं होता, ना right ना left, सिर्फ point demand curve के ऊपर ही shift होता है along with that demand curve. तो आप इसे movement along the demand curve भी बोल सकते हैं. So we have some alternative name also. Change in demand को हम shift in demand curve बोल सकते हैं क्योंकि इसमें डिमांड कर्व लिटरली शिफ्ट होता है राइट या लेफ्ट में, जबकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम सिर्फ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. ऑलवेज रिमेंबर दिस अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड डाउनवर्ड स्टैंड फॉर एक्सपेंशन इन डिमांड. ओके, फैक्टर्स दैट कॉज डिमांड कर्व टू शिफ्ट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकता है? जैसे इनकम ऑफ बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल.
Okay, how does income affect the demand curve? In case of a normal good, बेटा दो तरह के गुड्स हो सकते हैं. ऑन द बेस ऑफ इनकम वी कैन बाइफरकेट टाइप ऑफ गुड्स इनटू टू कैटेगरीज. अगर आप इनकम के बेसिस पे देखते हैं तो गुड्स कैन बी ऑफ टू टाइप. गुड्स दो तरह के हैं. कौन कौन से? नॉर्मल एंड इन्फीरियर. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इन्फीरियर गुड्स इन दिस चैप्टर. पहले हमने पढ़ लिया, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समझा कि इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं. इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट, विच हैज़ नेगेटिव इनकम इफेक्ट. और अगर इसी के ऑपोजिट हम बोल देते हैं नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन, तो हम इसमें उल्टा बोलेंगे नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैज़ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट. यानी कि ये वो गुड्स हैं जो इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ ज़्यादा डिमांड किए जाएंगे और इनकम डिक्रीज होने से इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी. ठीक है. नॉर्मली होता क्या है, जब भी हमारा इनकम लेवल इंक्रीज होता है तो हम कुछ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास बाइक है आज, ठीक है, और हमारी इनकम और इंक्रीज हो जाती है, डबल हो जाती है, तो विल ट्राई टू गेट अ न्यू कार. ओके. तो in that case when income increases we trying to buy a new car become a normal good. ठीक है. कार जो हमारी नॉर्मल गुड हो जाएगी, बाइक हमारे लिए क्या हो जाएगी? इन्फीरियर गुड. ओके. तो इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट. उनका इनकम का इफेक्ट जो है नेगेटिव हो गया. वैसे ऐसा कभी नहीं होता कि सारे गुड्स या तो सिर्फ इन्फीरियर होते हैं या फिर सिर्फ नॉर्मल होते हैं. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कई बार एक ही कमोडिटी अलग अलग कंज्यूमर के लिए इन्फीरियर और नॉर्मल दोनों हो सकती हैं. हो सकता है किसी साइकिल यूज़र के लिए बाइक नॉर्मल गुड हो, बट किसी कार बायर के लिए, पोटेंशियल कार बायर के लिए एग्जिस्टिंग बाइक एक इन्फीरियर गुड हो जाएगा. ओके. चेंज इन टेस्ट, हैबिट एंड फैशन. दिस विल ऑल्सो लीड्स टू चेंज इन डिमांड. अगर फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं तो भी आपका डिमांड का विल गोइंग टू शिफ्ट आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें दो ही केसेस बनाने हैं. एक होगा फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, दूसरा अनफेवरेबल. इन केस ऑफ फेवरेबल इट विल शिफ्ट टू राइटवर्ड एंड इन केस ऑफ अनफेवरेबल इट विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड. ओके. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. On the basis of relatedness of commodity, we can bifurcate goods into two types: substitute goods and complementary goods. ठीक है. Substitute goods and complementary goods. Okay. What are substitute goods? Substitute goods are those goods which can be used in place of other goods. भाई आपके पास कई सारे ऐसे गुड्स होंगे जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, आप ऑल्टरनेटिवली उनको यूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप पेन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इन केस पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हो सकता है पेंसिल यूज़ कर लें. पेंसिल में भी सब्स्टिट्यूट टू द पेन, क्योंकि लिखना ही आपको. ठीक है. और बहुत सारी चीज़ें हैं. कहीं अगर जाना है, किसी डिस्टेंस को कम्यूट करना है, तो आप बाई कार जा सकते हैं, बाई बाइक जा सकते हैं. तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम बाइक में भी सब्स्टिट्यूट टू कार. और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जब किसी कमोडिटी को, किसी गुड्स को दूसरे गुड्स की जगह आप यूज़ करते हैं तो ऐसे गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं. फिलहाल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आप दे सकते हैं तो टी कॉफ़ी कर सकते हैं. लाइक इंस्टेड ऑफ हैविंग टी वी कैन गो फॉर कॉफ़ी, और फॉर कॉफ़ी वी कैन गो फॉर टी. दैट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ बोथ दी कमोडिटीज़. दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are used together, which means दोनों को आप एक साथ यूज़ कर रहे हो. आप देखते हो पेन के साथ में आप रिफिल यूज़ करते हैं. ठीक है. शू के साथ आप सॉक्स पहन रहे हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ ही आप कंज्यूम कर रहे हैं. मोबाइल के अंदर एक बैटरी है, ठीक है, और कार के साथ आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं. तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं. तो क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए? वन लाइन डेफिनेशन: दीज आर गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर. और इनका जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से इन्वर्स है, क्योंकि अगर एक कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड कुछ कम हो जाएगी. सी एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं आप, पेन एंड इंक. अगर इंक और पेन दोनों सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, तो इन केस द प्राइस ऑफ पेन हैज़ बीन
इंक्रीज इन अ मार्केट, एक मार्केट में पेन के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो गए। अब सोचिए अगर पेन के प्राइस इंक्रीज हो गए तो विल स्टार्ट डिमांडिंग लेस ऑफ दोज पेन, ठीक है, साइमल्टेनियसली या अल्टीमेटली द इंक विल ऑल्सो बी डिमांडेड लेस, तो इंक की भी डिमांड कम हो जाएगी। सो हेयर व्हेन प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ इंक डिक्रीजेस, सो इट बिकम अ काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ पेन एंड डिमांड ऑफ इंक, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हमने जो सब्स्टिट्यूट वाला एग्जाम्पल पढ़ा था टी एंड कॉफ़ी, उसमें भी हम इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। सी व्हेन कॉफ़ी बिकम मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, एज्यूम करते हैं कॉफ़ी बिकम मोर एक्सपेंसिव, कॉफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। अब सम ऑफ द कॉफ़ी यूजर will try to find any substitute for that coffee and they will certainly going for tea instead of having coffee। तो अगर वो कॉफ़ी की बजाय टी की तरफ जाते हैं क्योंकि टी इज़ लिटरली चीपर दैन कॉफ़ी, तो ऐसे केस में हो क्या रहा है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज हुआ, ठीक है, बट इसके साथ साथ क्या हुआ कि डिमांड ऑफ टी भी इंक्रीज हुआ। सो इट इज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, next is population. When there is an increase in population, definitely the demand of those goods and services will also going to increase, so that depends on distribution of population also। population बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। ओके, नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल गुड्स आपके इनकम के साथ में पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं हमेशा। when income increases, these goods will also be demanded more and vice versa, whereas in case of inferior goods, these goods will have negative income effect। as income increases, demand falls, as income falls, demand will increase। okay, normal goods are income positive। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो इनकम पॉजिटिव होते हैं। जब इनकम इंक्रीज होगी तो व्हेन योर डिमांड का विल शिफ्ट फ्रॉम डी टू D1। inferior goods are income negative। whenever income increases, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड कर्व जो है पीछे की तरफ यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट, दैट मीन्स डिक्रीज इन डिमांड। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 4, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of demand of a commodity to a change in its price। See why we are studying about price elasticity of demand। इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, दैट्स ओके। लॉ ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, बट लॉ ऑफ डिमांड इज समहाउ एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ डिमांड जो है एक तरह का क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है that will certainly going to help you to figure out direction of demand, which means when price rises demand falls, when price falls demand rises। it is nothing else but the direction of demand कि डिमांड का हुआ क्या, डिमांड बढ़ी या घटी। बट ये तो नहीं बताता ना कि when price increase this much demand will decrease this much। आपको ये नहीं मालूम पड़ता है कि डिमांड कितनी डिक्रीज हुई और कितनी इंक्रीज हुई। तो ये जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा प्राइस इलास्टिक डिमांड से। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी प्राइस इलास्टिक डिमांड। इसमें थ्योरी वाला पार्ट काफ़ी कम है, हम लोग मीनिंग करेंगे और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि अगर प्राइस 10% इंक्रीज होता है तो डिमांड कितने परसेंट चेंज होगी। फॉर एग्जांपल डिमांड इंक्रीज हो सकती है 20%, 40%, 50%, ठीक है, दैट डिपेंड्स। ये रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि अगर प्राइस में बदलाव आएगा तो डिमांड में बदलाव आएगा। तो डिमांड इज चेंजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस ओनली, ठीक है। वैसे जो रिस्पॉन्सिवनेस आएगी डिमांड में वो 3 तरह से आ सकती है। वो प्राइस की वजह से आ सकती है, वो क्रॉस इलास्टिक डिमांड की वजह से आ सकती है, और वो इनकम की वजह से आ सकती है। बट एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्राइस इलास्टिक डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड अगर आप इसे एक्सप्रेस भी करें, इन वर्ड्स एक्सप्रेस करें तो वी मे हैव 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिक डिमांड। अगर वो परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक में आपकी इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है दैट इज़ इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, इतनी हाईली इलास्टिक होती है।
और जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल इलास्टिक डिमांड है। और जो रिलेटिवली इलास्टिक हैं वो हाईली इलास्टिक डिमांड को कहेंगे, जिनकी वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है। कुछ होती हैं रिलेटिवली इनलास्टिक, यानी इनकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। रिलेटिवली इनलास्टिक विच मीन्स लेस देन 1। और कुछ होती हैं यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि नाम से क्लियर है यूनिटरी यानी 1। तो जब भी आपकी इलास्टिक डिमांड का जो वैल्यू है उसकी जो फिगर है एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाए, कैलकुलेशन के बाद उसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो क्या मानेंगे, इट इज़ कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। ओके, तो अब डायग्राम से समझ लेते हैं। वी हैव डायग्राम फॉर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज ए पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। बच्चे फिर दोबारा ध्यान समझ लीजिए, जो एक्स एक्सिस है इट इंडिकेट्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एंड वर्टिकल लाइन यानी कि जो वाई एक्सिस है ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सो ईडी इज इन्फिनिटी और इनफाइनाइट when demand is perfectly elastic. Okay, next is perfectly inelastic demand curve. Perfectly elastic demand curve में ED की वैल्यू आपकी exactly 0 आ गई है। We can see we have a demand curve exactly parallel to y-axis. It is a straight line parallel to y-axis, which means there is no change in quantity demanded. Quantity में कोई changes नहीं है। Even if infinite change in price is there, कितना भी price change हो जाए। Number 3 is unitary elastic. When demand curve is a unitary elastic, it means if there is a 10% change in price, the quantity demanded will also going to change by 10%, which means percentage change in price will always be equal to the percentage change in quantity. आपके प्राइस में जितने भी चेंजेस आएंगे, यानी जितने परसेंट प्राइस चेंज होगा उतना ही परसेंट एग्जैक्टली क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। इसका जो वैल्यू आएगी, इसका जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी इक्वल टू 1। और यहाँ आपका डायग्राम स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोप दे रखा है। इन केस अगर ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी होता है, ठीक है, इन केस अगर ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी होता है तब भी ये सही है। कुछ बुक्स में स्ट्रेट लाइन बने हैं, कुछ में कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बने हैं। बोथ डायग्राम्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड आप कंपेयर करिए पीछे वाले डायग्राम से, तो ये देखिए इसमें रिलेटिवली फ्लैटर कर्व है। फ्लैटर मतलब थोड़ा सा जेंटल कर्व है, ठीक है। स्टीप और फ्लैटर में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। स्टीपर कर्व क्या होते हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से स्लोप होंगे, और जो फ्लैटर कर्व होते हैं वो रिलेटिवली कम स्लोप होते हैं, लेफ़्ट टू राइट थोड़ा देर में नीचे आएंगे। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं एक इलास्टिक डिमांड यानी कि फ्लैटर डिमांड कर्व, इन विच ईडी इज़ मोर देन 1, ईडी की वैल्यू मोर देन 1 होती है। एक इलास्टिक डिमांड में आप देखो स्टीपर कर्व ऐसे होती है, डायग्राम देख लीजिए। स्टीपर कर्व आर लाइक दिस, चेंज इन प्राइस इज रिलेटिवली मोर देन चेंज इन क्वांटिटी। क्यों, यानी क्वांटिटी में कम चेंजेस आएंगे जबकि प्राइस में चेंजेस ज़्यादा आएंगे। अब देखिए प्राइस 40% इंक्रीज हुआ है जबकि क्वांटिटी कितना डिक्रीज हुई है, ओनली 10%. So this kind of responsive change is called inelastic demand. Okay, now factors that influence the price elastic demand. वो factors जो price elastic demand को influence करते हैं. देखिए first one is nature of the commodity. पहला है आपका nature of the commodity. चीज़ों के नेचर पर डिपेंड करता है. यहाँ पर हम इसके 3 क्लासिफिकेशन करते हैं, नेसेसरी गुड्स, कंफर्ट गुड्स एंड लग्जरी गुड्स. बेटा नेसेसरी गुड्स जो है हमेशा ऐसे गुड्स होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, मतलब एक तरह से आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, आप उन्हें यूज़ करेंगे ही करेंगे. ठीक है. सो व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग नेसेसरी गुड्स वी कैन नॉट चेंज द कंजम्पशन लेवल ऑफ दोज गुड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस ऑफ दोज गुड्स. व्हेन प्राइजेस इंक्रीजेस, अगर नेसेसरी गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तब भी हम उन्हें उतना ही कंज्यूम करते हैं जितना हमें करना है. जैसे मेडिसिन हैं, ठीक है. अच्छा, आपके घर में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ें नेसेसरी गुड्स हैं, जैसे सॉल्ट है. सॉल्ट तो उतना ही यूज़ करेंगे ना, अगर एक्सपेंसिव है तब भी और इनएक्सपेंसिव है तब भी. तो ये कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जो कि इनलास्टिक डिमांड को भी शो करेंगे. तो इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स डिमांड इज ऑलवेज इनलास्टिक. इन केस ऑफ कंफर्ट गुड डिमांड इज इलास्टिक. कंफर्ट गुड्स क्या होते हैं, जिनके होने से
लाइफ ईजी हो जाती है, ठीक है। जिनके होने से लाइफ ईजी होती है बट ना होने से ख़त्म नहीं हो जाएगी। लाइक फ़ैन और फर्नीचर ये सब चीज़ें सभी को चाहिए, ठीक है। बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं लाइक लग्जरीज, बहुत एक्सपेंसिव, ठीक है। तो जो ऐसे गुड्स हैं, लग्जरीज टाइप के गुड्स हैं, कार है, लग्जरी हैं, इनके ना होने से लाइफ की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इनके ना होने से भी लाइफ की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसी जो कमोडिटीज़ हैं इनकी इलास्टिसिटी हमेशा हाईली इलास्टिक रहेगी। सो प्लीज़ रिवाइज अगेन। 3 तरह के हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेस ऑफ नेचर। फर्स्ट है नेसेसरी गुड्स, दूसरे हैं आपके कंफर्ट गुड्स, और तीसरे हैं आपके लग्जरीज। नेसेसरी गुड्स आर ऑलवेज इलास्टिक डिमांड कर, और कंफर्ट गुड्स के क्या होंगे, हमेशा इलास्टिक डिमांड कर्व होंगे, और ये जो लग्जरीज हैं इनके हमेशा हाईली इलास्टिक डिमांड होगी। नंबर 3, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। कुछ गुड्स के ऊपर हमारी इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च होता है और कुछ पे कम खर्च होता है, ठीक है। द गुड्स ऑन विच वी स्पेंड स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ आर इनकम आर इनलास्टिक। जिस पे हम थोड़ा हिस्सा खर्च करते हैं वो इलास्टिक होते हैं। वेयर एज द कंज्यूमर डज नॉट बॉदर अबाउट दी चेंजेस इन देयर प्राइस, लाइक सॉल्ट, मैच बॉक्स, पेंसिल। इतनी इनएक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं कि इनके प्राइस में ज़रा भी चेंजेस आते हैं तो हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर 50 पैसा का मैच बॉक्स 1 रुपये का हो गया, यूज़ तो हमें उतना ही करना है। ओके, नेक्स्ट, सेवरल यूजेस। यानी हो सकता है किसी कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस हों। जिन कमोडिटीज़ के मल्टीपल यूजेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे मिल्क है, मिल्क की डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है क्योंकि मिल्क के मल्टीपल यूज़ हैं। वी कैन यूज़ मिल्क एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ टी, कॉफ़ी, और वी कैन मेक स्वीट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। कुछ लोग इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ लोग इसे चीज़ बना रहे हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के मिल्क प्रोडक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। बट अगर एक्सपेंसिव होता है तो डेफिनेटली हम इसे जो ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, उन्हीं टाइप के यूजेस में लाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा एक्सपेंसिव होने पर हो सकता है घर के छोटे बच्चों को ही ऑफ़र किया जाए, बेटा आप छोटे बच्चों को दे देंगे और सिर्फ चाय पियेंगे, आप उसके डिफरेंट टाइप के स्वीट्स या और कोई यूज़ में उसे नहीं लेंगे, ठीक है। और दूसरे कुछ टाइप्स हो सकते हैं जिनके मल्टीपल यूज़ ना होकर बहुत ही लिमिटेड यूज़ हो, जैसे पेट्रोलियम है, लिमिटेड यूज़ है, ठीक है। तो ऐसी जो कमोडिटीज़ हैं जिनके लिमिटेड यूज़ हैं वो इनलास्टिक होते हैं। नाउ ऑन द बेस ऑफ हैबिट एंड एडिक्शन, कुछ चीज़ों के हैबिट हो जाती हैं, हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें नॉन हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज़ हैं। तो डेफिनेटली जब कोई चीज़ हैबिट फॉर्मिंग होती है तो वो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करती, यानी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। सो इन दैट केस गुड्स विच आर हैबिट फॉर्मिंग विल हैव इनइलास्टिक डिमांड कर, यानी प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। प्राइस से उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो इलास्टिक कहलाएंगे। और गुड्स विच आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग या नॉन एडिक्टेड गुड्स, दे आर रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड।